Today we are going to study about the second unit, that is cloud computing. So this is another technology which is a very recent technology and it is emerging in a very wide domain. This technology, cloud computing, is basically is the base of all the applications area which is using big data analytics. So in the areas such as banking, civil aviation, networking, in all these areas, cloud computing is form of base. So in this unit, we are going to discuss about what is cloud computing, the history now, chronological order of the development, what are the different advantages when we use cloud computing, what are the disadvantages of cloud computing, what are the different components which is used to build a cloud computing environment, what are the different types of architecture and what is the basic requirement of architecture for cloud computing, and what are the different types of cloud computing used, their services and their users, and then we see what are the recent developments in the field of cloud computing based on the requirements which is generated in the past, what are the recent developments taking place. And finally, the concluding remarks about the cloud computing and its future. So, before moving to the cloud computing, we should know about the cloud. It is the exact role of cloud in cloud computing. As far as we know that the cloud means, naturally when the word cloud comes in our mind, we think about the natural phenomena. The cloud is in sky. तो वहां से इस बात को लेकर के चलने का प्रयास करते हैं कि क्लाउड का मतलब, तो आमतौर पे अभी के बारे में अगर देखें, क्लाउड का मतलब ये होता है कि नॉर्मली हम समझते हैं कि क्लाउड यानी वो नेचुरली फिनोमिनल ऑकरेंस जिसमें इसके थ्रू बारिश होती है। क्लाउड से तो नहीं होती, अगर बादल छाया हुआ है काले, तो हम ये मान के चलते हैं कि बारिश, तो ये हमारे दिमाग में आता है कि क्लाउड से क्या भरा है, बारिश, यानी बूंदे भरी है, पानी की बूंदे भरी है जो बारिश के रूप में रुकता है। कुछ इसी तरह का फिनोमिना लेकर के चलते हैं कंप्यूटर की क्लाउड वो पोर्शन है जहाँ पे हम अपने डेटा को रखते हैं और जब जरूरत होती है तो उस डेटा को ले, यानी क्लाउड क्या है, स्टोरेज, स्टोर करके रखता है। तो बहुत सारे सर्वर्स यूज होते हैं अभी के समय में, ये सारे सर्वर अपने डेटा को क्लाउड पे रखते हैं। तो लोकली हम किसी यूजर के डिवाइस पे ना रख करके हम उसको स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं सर्वर पे और वहाँ पे डेटा। ऐसा इसलिए भी करते हैं कि कभी कभी हमारा फ़ोन है, हमारा लैपटॉप है, पीसी है, ये खराब हो जाता है, हैक हो जाता है, वायरस इसमें आ जाते हैं, तो फॉर्मेट करना है, तो हमारे बहुत सारे डेटा जो है यूजेबल नहीं रह जाते, करप्ट हो जाते हैं, उनको उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो फिर उस समय हमको दिक्कत होती है अगर हमने कोई बैकअप नहीं बनाया होगा, तो स्टोर करके नहीं रखा। अगर लार्ज अमाउंट में डेटा है तो हम उसको कहाँ तक स्टोर कर पाएंगे। तो इन सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जो टेक्नोलॉजी बनाई गई उसका नाम दिया गया क्लाउड कंप्यूटिंग। So cloud and computing. So here the cloud means the storage facility of different servers where you put your all the data, important data, such as photos, conversations, profile,
the backups which you need in future is now stored on that cloud. So it works the same way with the cloud email providers like Gmail or Microsoft Office. So when you are using Gmail or mail other than Gmail, you see that there is a 15 GB of storage provided with each email that is free. And if you require more, then you have to pay for that. So these are the features which now today's different services are providing. So why is it called the cloud? The cloud started off as a tech industry slang term. In the early days of the internet, normally internet is known as the cloud. अगर आपको याद होगा पहले जब पहले इंटरनेट को दिखाया जाता था तो बादल के रूप में दिखाया जाता था और वहां से एंटीना के थ्रू दिखाया जाता था कि कंप्यूटर में कनेक्टेड, यानी इंटरनेट को क्लाउड से दिखाने का एक तरह से सिंबल बना हुआ था उससे often represented the servers and networking infrastructure that make up the internet as a cloud. तो क्लाउड के थ्रू इंटरनेट को दिखाने की एक परिपाटी से शुरुआत हुई थी. As more computing process moved to this servers and infrastructure part of the internet, people began to talk about moving to the cloud as a shortened way of expressing where the computing process will be. जैसे जैसे समय गुजरता है लोगों ने ये मान लिया कि जो कंप्यूटिंग का प्रोसेस है जब भी हम कोई चीज़ जो है नेट के थ्रू ले रहे हैं या उसके थ्रू किसी फाइल को एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो हम मानते हैं कि जो कंप्यूटिंग का काम चल रहा है किसी सर्वर पे किसी जगह पे हो रहा है और उस जगह पर क्लाउड. आज के समय में क्लाउड जो है वाइडली एक्सेप्टेड टर्म हो गया और बहुत सारे लोग अब इस बात को जान गए. ये कोई स्लैंग टर्म नहीं है. इज एक्चुअली अ प्लेस वेयर वी पुट आवर important files owned by different servers. Most of the time they don't charge it for it, but if you have to place bigger files more than the capacity of the normal users, then you have to buy it and you have to pay. Next is what is computing in cloud. As we know that there is a two term that is cloud and computing. So now what is computing? Simply put, cloud computing is the delivery of computing services. So what are the different services which a cloud provides? Is like providing you database, providing you networking facilities, provide you different softwares, provide you different analytics features, intelligence over the internet. So all these things comes under computing. तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो जैसे अभी क्या करते हैं हम लोग, जब आपने देखा होगा कोई पीडीएफ फाइल है उसको वर्ड फाइल में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं गूगल पे जाते हैं और वहाँ टाइप करते हैं ऑनलाइन पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर्स फ्री. तो फ्री जो ऑनलाइन पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर्स वो ओपन होता है. फिर हम उस पर फाइल प्लेस करते हैं और कन्वर्ट करके नीचे देते हैं. अब तो ये फीचर है कि जिसमें पीडीएफ से फाइल कन्वर्ट हुई है कोई सॉफ्टवेयर को किसी ने बनाया उसको सर्वर पे प्लेस किया. हम क्या कर रहे हैं उस फीचर को यूज कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं और उस एप्लीकेशन को यूज करके हम अपनी जो दिया हुआ डॉक्यूमेंट है जो पीडीएफ फॉर्मेट में था उसको किसी वर्ड फाइल में कन्वर्ट करा. तो यहाँ पे क्या हो गया कि हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग को यहाँ पे उसके जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर है क्लाउड पे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. So here we are using the service of software. Likewise, there are different services like analytics कि हम कोई अपनी फाइल और उसको एनालिसिस करने को दें and then we get the result or the required database. कुछ जगह पे नेटवर्किंग भी जो है वो अलाउड होती है. स्टोरेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि हम बहुत सारे डेटा को अपने स्टोर कर सकते हैं क्लाउड पे और जब जरूरत होती है हम उसको से ले लेते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो basically comes under the umbrella of computing. So the cloud here offers you the facility of innovation, flexible resources, and actually economics of scale.
तो फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज हमको मिल गए, बहुत सारी चीज़ें जो है वो फास्टर हो गई, इनोवेशन करना जो है ज़्यादा तेज हो गया। क्योंकि अभी जैसे क्या है, मान लीजिए कि पीडीएफ टू वर्ड ही कन्वर्जन का काम है, अगर ये अवेलेबल नहीं होता तो हमको कोई सॉफ्टवेयर लेना होता है, उसके लिए हमें पैसा भी देना होता, समय भी देना होता, तो हम उसको कन्वर्ट करके फिर हम उस काम को आगे बढ़ाते हैं। अभी क्या है कि सारी चीज़ें रेडिली अवेलेबल, तो हमारा समय कम लग रहा है, हम किसी और काम में अपने दिमाग को लगा रहे हैं। फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज अवेलेबल है क्लाउड, उनको यूज करके हम अपना सिस्टम जनरेट कर लेते हैं, अपना सिस्टम डेवलप कर लेते हैं। तो अगर इंट्रोडक्शन देखा जाए इससे क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इज इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग, एक ऐसा कंप्यूटिंग प्रोसीजर जो कि इंटरनेट पे बेस्ड है, जहाँ पे रिसोर्सेज शेयर्ड है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर शेयर्ड है, इंफॉर्मेशन शेयर्ड है। और ये शेयर्ड इंफॉर्मेशन जो है या शेयर्ड सॉफ्टवेयर या रिसोर्सेज जो है वो ऑन डिमांड हम उसको सप्लाई करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का वो सप्लाई। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को कहें तो ये एक तरह का पैराडिम शिफ्ट होता है, मेन फ्रेम टू क्लाइंट सर्वर। अब हमको अपने पास डेटा बहुत सारा स्टोर करके रखने की जरूरत महसूस है। डिटेल्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में यूजर्स के पास होती हैं, और उसको हर चीज के लिए खुद को एक्सपर्टाइज करने की जरूरत नहीं होती है। तो अपने बहुत सारे काम को, जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लाउड पे मौजूद, उसको यूज करके कर लेता है। तो बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है एज अ यूजर। आपके पास बहुत सारी एनालिटिक्स फीचर्स आपके हाथ में आ जाते हैं, बहुत सारे डेटा बेसिस आ जाते हैं, जिनको यूज करके आप अपने सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, जो पहले नहीं थी ये सारी चीजें। So if someone asks you what is cloud computing, then what do you have to say? कैसे डिफाइन करेंगे उसको, थोड़ा सा इसको समझ। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग। So naturally, if you have to use cloud computing process, then you have to have some internet connected with your PC, connected with your mobile, laptop should be enabled to. By virtue of that, you can get shared servers, shared softwares, infrastructures, different platforms, different devices, and other resources. Sometimes you have to pay for that, and sometimes you can use it on a free basis. So naturally, some of the services which a common people require is now free on the net. So you can see that if you want certain data, you simply Google it and get the information about the data. If you require a more specific information about it, then it might be that you have to pay for it. But most of the cases, you get it. All information that a digitized system has to offer is provided as a service in the cloud computing model. क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल में जब आप किसी इंफॉर्मेशन को लेने जाते हैं तो वो किसी ना किसी सर्विस के फॉर्म में वहाँ पे अवेलेबल होता है। यूजर कैन एक्सेस दी सर्विसेज, यूजर जो है वो इन सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है इंटरनेट क्लाउड पे, बगैर ये जाने हुए कि वो कैसे पीछे बना, कैसे वो काम करता है। वो सिंपली उस सर्विस को यूज करके अपना काम करता है। जैसे जो हम लोगों ने बात की अभी पहले, अगर पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्जन करना है, जरूरी नहीं है कि आप वो पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्जन सॉफ्टवेयर कैसे बना उसके बारे में जानें। उसने जो स्टेप बताया, खाली आप वो 3-4 स्टेप करते हैं और आपकी फाइल कन्वर्ट हो जाती है। वो आपसे पहले पूछते हैं कि आप लोग द फाइल विच यू वांट टू कन्वर्ट,
अपलोड करते हैं उस फाइल को, अपलोड होने के बाद वो नेट पे जाती है फाइल, वहाँ पे कन्वर्जन एक बार अपलोड होने के बाद स्टार्ट होता है, takes some time depending on the capacity of the channel, depending on the file size, and then it converts. And in final step, you have to download the converted copy. But you don't know how this conversion actually takes place. You will not bother to understand because this is the software developed by some other person. What you have to do, you have to only put your file in that software, and the software does all the thing and convert the file and send it to you. So here you are using the feature of cloud computing as a service provider. So there are a lot of things apart from the service provider. There are a lot of things on the cloud which you use. जैसे आप एक एग्जांपल ऐसे समझिए, आपको पिज़्ज़ा बनाना है, और पिज़्ज़ा बनाने के लिए एक तरीका तो ये है कि अब आप जो है पिज़्ज़ा का सारा इंग्रेडिएंट खरीद के लाएं, फिर आपके पास एक किचन होना चाहिए, किचन में ओवन होना चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो जा करके आप पिज़्ज़ा बनाइए। एक तरीका ये हो सकता है कि ठीक है आप पिज़्ज़ा खरीद के लाइए, उसका पिज़्ज़ा बेस खरीद के लाइए, उसका मटेरियल खरीद के लाइए, किचन को यू प्रोवाइड कर दे आप, गैस को वही गैस आपको प्रोवाइड कर दे, वही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दे, वही ओवन प्रोवाइड कर दे, आप खाली जो है सामान लेके पहुँच। तीसरा तरीका ये है कि आपको सामान भी नहीं खरीदना है, सामान भी वही है दूसरे का, उसने पहले से रखा हुआ है, किचन भी उसका है, आप गए वहाँ पे कुक किया लेकर के चले। एक और चौथा तरीका भी है कि आप सिर्फ ऑर्डर कर देंगे आपको पिज़्ज़ा खाना और पिज़्ज़ा जो है वो आपका डिलीवरी। ये डिफरेंट जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये डिफरेंट अप्रोच है, डिफरेंट मॉडल है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग, जो डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड, जिसकी बात हम करेंगे आगे कि हम एज ए सर्विस क्या दे रहे हैं आपको, एज ए सर्विस हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एज ए सर्विस जो है हम आपको मटेरियल दे रहे हैं, कोई सर्विस जो है हम दे रहे हैं आपको, या कोई प्रोग्राम दे रहे हैं आपको एज ए सर्विस। तो ये सारी चीज़ जो है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। Next is the history. Now, concept originated from telecommunication companies changing to VPN. तो 1999 में सेल्सफोर्स नाम की कंपनी जो है उसने सबसे पहले ये टर्म यूज करना स्टार्ट किया, जिसको इन्होंने कहा क्लाउड कंप्यूटिंग का बेस। तो ये क्या करते थे, डिलीवरी ऑफ एप्लीकेशंस वाया वेब, यानी एप्लीकेशंस बनाते थे, उन एप्लीकेशंस को वेब के थ्रू डिलीवर करते। इन 2002 अमेजन लॉन्चेस अमेजन वेब सर्विस। 2002 में अमेजन ने एक सर्विस लॉन्च की, अमेजन वेब सर्विस, और इन वेब सर्विसेज के में इसमें बहुत सारे फीचर्स थे। उन फीचर्स में से कुछ फीचर जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, कुछ तरह के सॉफ्टवेयर उसमें दिए, प्लेटफॉर्म दिए, ठीक है मेरे पास ये टूल है, ये सॉफ्टवेयर टूल से आप आकर के अपने प्रोग्राम से बना सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, आपको अपने किसी को उसको डाउनलोड करके प्रोग्राम को रखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास प्लेटफॉर्म है, आप आइए यूज़ करिए। 2006 में इसमें और कंपनी जुड़ गई, गूगल डॉक आ गई, अमेजन इलास्टिक कंप्यूटर क्लाउड आ गए, 2008 में यूकेलिप्टस, 2009 में माइक्रोसॉफ्ट एजोर। तो धीरे धीरे अगर आप देखें तो ग्रेजुअली 1999 से लेकर के अभी तक बहुत सारी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हुई, प्रोसेस को उन्होंने और डिफाइन किया। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है अपने में एक बहुत बड़ा
क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए अगर देखा जाए तो एज ए आर्किटेक्चर क्या क्या चीजें चाहिए होती है? क्लाउड आर्किटेक्चर systems architecture of the software system involved in delivery of cloud computing. Typically involves multiple cloud components communicating with each other or application programming interfaces, usually web services. अगर ध्यान से देखेंगे इसमें तो चार चीजें इंपॉर्टेंट है और चारों एक साथ इंटरकनेक्टेड है। कौन सी? क्लाउड सर्विस जैसे क्यू, क्लाउड प्लेटफॉर्म होना चाहिए। क्लाउड प्लेटफॉर्म यानी कि आपको जैसे वेब पेज बनाना है तो वेब का फ्रंट एंड जो है आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, उसको बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आजकल आपने देखा होगा कि बिलिंग सिस्टम जो है वो क्लाउड बेस्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे मौजूद है, आप उसका यूज कर लेते हैं। एंड फाइनली द क्लाउड स्टोरेज यानी डेटाबेस। तो अब आपको डेटाबेस बना के रखने की जरूरत नहीं है, आप अपने डेटा को कहीं स्टोर कर लेते हैं, वहाँ पर रख देते हैं और वो डेटा यूज आप भी यूज कर सकते हैं, दूसरे को अगर आप देना चाहते हैं दूसरा भी उसको यूज कर सकते हैं। तो ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी क्लाउड आर्किटेक्चर को बनाने। कौन कौन सी चार चीजें? तो क्लाउड सर्विस होना चाहिए, दूसरा क्लाउड प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और चौथी चीज की जिस डेटा पे आपने काम किया और जो डेटा रिजल्ट फॉर्म में आया या और जो डेटा आपको रखना है, ये सारे डेटा रखने की कोई व्यवस्था है, इसको हम कह रहे हैं क्लाउड स्टोरेज। ये चार चीजें जब हो और इनका एक प्रॉपर नेट कनेक्शन हो, प्रॉपर कनेक्टिविटी होगी, तो उसे ही कह रहे हैं क्लाउड क्लाउड आर्किटेक्चर। क्लाउड कंप्यूटिंग का सिंपल आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो वो क्या है? तो अगर आपको यूनिक्स के बारे में इसे पता है तो काफी कुछ ये यूनिक्स से मिलती जुलती इसकी फिलॉसफी। This resembles the Unix philosophy of having multiple programs each doing one thing well and working together very universally. Complexity is controlled and the resulting systems are more manageable than their number. तो एक बड़े प्रोग्राम को जैसे यूनिक्स में सर्टेन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और फिर उनको एक साथ कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, और जो हमारा मेन पर्पज है कंप्लीट प्रोग्राम को पूरा करना है उसको अचीव करते हैं। तो डिवाइड द a bigger task into some simpler tasks, assign it to different person, let them do it separately, combine it, and then form the result. The two most significant components of cloud computing architecture are known as front end and back end. तो कुछ पार्ट फ्रंट एंड पे होता है, कुछ पार्ट बैक एंड पे होता है। फ्रंट एंड पे जो काम हो रहा होता है उसको क्लाइंट देख रहा है, कस्टमर देख रहा है, कंज्यूमर देख रहा है। The front end is the part seen by the client, that is the computer. जैसे आप कोई चीज अगर अभी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपको एक इंटरफेस दिखता है जिसपे आपको प्रोडक्ट दिखा है, आपने उस प्रोडक्ट को सर्च किया, सेलेक्ट किया, ऑर्डर को प्लेस किया। जब आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं आपके पास एक मैसेज आता है कि हाँ ठीक है, ऑर्डर इज प्लेस्ड एंड प्लेसमेंट आईडी नंबर इज दिस, नाउ यू कैन ट्रैक दिस। इतने मैसेज के बाद बैकएंड का काम स्टार्ट हो जाता है कि उस प्रोडक्ट को कहाँ से लेना है, नियरेस्ट जो स्टोर है वहां तक पहुंचाना है, उस पूरे प्रोसेस को इनिशियलाइज करना है, ये बैकएंड में होगा। ये आप नहीं देखते, यानी एज ए क्लाइंट आप नहीं देखते, ये बैकएंड में काम। द बैकएंड ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर इज द क्लाउड इटसेल्फ। अब वहां पे बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हैं, बहुत सारे सर्वर्स लगे हैं, बहुत सारे डेटा स्टोरेज डिवाइसेस हैं, वो आपस में काम एक दूसरे से
कम्युनिकेट करके उस काम को अंजाम दे रही है, जो फाइनल टास्क इसको दिया जाए। तो दो पार्ट में सिग्निफिकेंटली डिवाइड हो जाता है आर्किटेक्चर। एक होती है फ्रंट एंड डिजाइनिंग या फ्रंट एंड पार्ट, दूसरा होता है बैक एंड। देखा जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग को तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया: पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। तो नाम से क्लियर है कि हाइब्रिड क्लाउड जो है, it takes some characteristics of public cloud and some characteristics of private cloud, combined it and then form it as a. So we discuss one by one all these three cloud computing types, starting from public cloud. So what is public? Public clouds are made available to the general public by a service provider who hosts the cloud infrastructure. सर्विस प्रोवाइडर होगा जो डिफरेंट कस्टमर्स को क्लाउड स्टोरेज की या क्लाउड पे जो सर्विसेज हैं उनको यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड। कुछ क्लाउड प्रोवाइडर्स अभी ज़्यादा यूज होते हैं, इनमें से अमेजन का AWS अमेजन वेब सर्विसेज है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल का अपना है। ये इनके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस करने का इजाजत देती है ओवर द इंटरनेट। With this model, customer have no visibility or control over their infrastructure is located. यहाँ पे कस्टमर के हाथ में उन इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो सिर्फ उसको यूज करता है। जैसे आप क्लाउड पे डेटा अपना स्टोर, आपने कोई ईमेल आईडी बनाई और आपने उस पर अपना डेटा स्टोर किया, एक्चुअल में वो डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है वो आपको नहीं पता है, you have no control over it. This is entirely done by the Google. Put your data safely, then to retrieve it safely, provide it to you. All this process is controlled by the providers, cloud providers. The customer has no visibility or control mechanism over that. It is important to note that all customers on public cloud share the same infrastructure pool with limited configuration. तो जितने भी कस्टमर्स हैं वो उसी पब्लिक क्लाउड को यूज कर रहे हैं, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं। हालांकि लिमिटेड कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास, पर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन है, आपका डेटा ब्रीच नहीं होता, दूसरा कोई आपके उस डेटा को देख नहीं सकता। इंक्रिप्टेड डेटा है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, कोई और नहीं जान सकता इसके बारे में। और अवेलेबिलिटी वेरिएंसेस है, आप किसी और फॉर्म में चाहते हैं, दूसरा कस्टमर उसको दूसरे फॉर्म में चाहता है, तीसरा तीसरे फॉर्म में चाहता है। तो ये सारी चीजें जो है वो प्राइवेट क्लाउड का मतलब ये है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी, अब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का एक डेटा बनाती है जिसको वो चाहती है कि उसके कंपनी वाले ही देख सके, कोई बाहर का आदमी उसको ना देख सके। तो इस तरह के फीचर के लिए वो एक प्राइवेट क्लाउड बनाएंगे जो लिमिटेड पर्सन्स के लिए होगा। उस पर जो डेटा होगा, जो सर्विसेज होंगी, वो लिमिटेड पर्सन्स उसको यूज करेंगे और उन ऑथराइज पर्सन्स के अलावा कोई भी और उसको एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या होता है कि जो पर्सन्स उसको यूज करते हैं वो उसके कंट्रोल और उसके डेटा सिक्योरिटी फीचर्स को जान रहे हैं, वो अननोन उसके बारे में नहीं है। So this is a cloud system which is not shared with other organizations.
या वो खुद ही इसको मैनेज कर रहे हो या किसी थर्ड पार्टी को उन्होंने दे दिया हो कि आप मेरे लिए बना करके ऐसा क्लाउड स्ट्रक्चर दे दीजिए। बट इन बोथ द केसेस थर्ड पर्सन जो है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो है, दूसरी कंपनी जो है, वो उसको यूज नहीं कर सकती। ओनली दैट organization who has owned it, who has made it for themselves, have this authority to use and has this provision to control and look after all the security features. So this is entirely a private cloud system. When we talk about the hybrid cloud system, then hybrid clouds are a combination of दो या दो से ज्यादा क्लाउड से मिलकर बनते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। इनको कुछ कुछ फीचर्स इनके मिला के बनाया जाता है। इनके मल्टीपल डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं। इन हाइब्रिड क्लाउड यू कैन लेवरेज थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर्स इन आइदर अ फुल पर्सन। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन उसने अपना एक प्राइवेट क्लाउड सिस्टम बनाया, पर वो अपनी कुछ फैसिलिटी को चाहता है कि ठीक है दूसरा भी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सके उसको। एक एमओयू साइन कर लिया लोगों ने कि ठीक है भाई चलिए आप मेरे कुछ क्लाउड के कुछ पार्ट को यूज कर सकते हैं, मैं आपके क्लाउड के कुछ सर्विसेज को यूज कर सकता हूँ, और उसमें इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बन गई। अब दोनों उनकी कुछ सर्विसेज को यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंप्यूटिंग बढ़ जाती है। हम बहुत सारे विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कुछ चीज़ें उनके फीचर्स उनके अच्छे होते हैं, कुछ फीचर्स हमारे क्लाउड में अच्छे हैं, कुछ उनके प्रोग्राम्स अच्छे हैं, कुछ हमारे प्रोग्राम्स अच्छे हैं। हम उनके कुछ अच्छे फीचर्स का यूज़ कर लेते हैं, वो भी हमारे कुछ अच्छे फीचर्स का यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। और इस तरह से टोटल जो सिस्टम हमको बनाना है उसमें बहुत फायदा है। तो जो इंटायर प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होता है, स्पीड अप होता है, जो पहले पॉसिबल नहीं था। क्योंकि व्हेन यू डेवलप अ प्राइवेट क्लाउड, then certainly the specifications, property is limited. You built it for some special purposes. But if you need some extra facility, then either you have to pay for it or you have to make other. So this might take some financial constraint, yeah, some financial constraint on your budget to build a separate private cloud for each and special for special requirements. So it finally burdens your budget. तो हम क्या करते हैं, इन चीजों से बचने के लिए हाइब्रिड क्लाउड को यूज करते हैं, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे से लाभान्वित हो सकते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और उनके फीचर्स को यूज करते हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं। तो इतनी बात आज मुझे करनी थी आप लोगों से लेक्चर में। तो आज अगर देखा जाए तो आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक्स के बारे में जाना। इसमें सबसे पहले तो ये जाना कि व्हाट इज क्लाउड, क्लाउड किसे कह रहे हैं, क्लाउड में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कंप्यूटिंग का मतलब क्लाउड में क्या है। कंप्यूटिंग का मतलब हम लोगों ने जाना कि इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना, उन पे जो डेटा दिया हुआ है उन डेटा से कोई पर्टिकुलर एनालिसिस कराना और उस रिजल्ट को यूज़ करना। ये सारी चीज़ क्लाउड कंप्यूटिंग में आई।
क्लाउड और कंप्यूटिंग को हम लोगों ने फिर मर्ज किया एक साथ और ये समझने का प्रयास किया कि कंप्यूटिंग किसे कहते हैं। देन इंट्रोडक्शन पार्ट कि क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इसका इतिहास क्या रहा है, कब से ये टर्म आया, कब से इसकी शुरुआत हुई। तो ये पाया कि 1980 में जब कंप्यूटर्स आए, क्लाउड जैसा कुछ चीज़, डेटा आपको अपने ही स्टोर करना रहता था, यूजर्स को अपने डेटा को बचा के रखना होता था, एक बार लॉस हो जाने के बाद रिट्रीवल आसान नहीं। तो उस कंडीशन में ऐसी आवश्यकता पड़ी कि भाई हम अपने डेटा को करेंगे, तो उसमें फिर क्लाउड कंप्यूटिंग का रोल आया। तो इतिहास में जब हम लोगों ने इसका देखने का प्रयास किया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि कैसे कैसे ये चीज़ शुरू हुई कंप्यूटिंग, 1999 में पहली बार इस तरह का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जब बहुत सारे एप्लीकेशंस को वेब के थ्रू लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हुआ। 1999 से लेकर के अभी तक इसकी एक लंबी यात्रा हो गई। उस यात्रा में इसने बहुत कुछ पाया और कुछ डेवलप किया। फिर हम लोगों ने इसके बेसिक आर्किटेक्चर की बात की, तो ये पाया कि इसके आर्किटेक्चर में चार चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। क्लाउड सर्विस, क्लाउड प्लेटफॉर्म और क्लाउड स्टोरेज, ये चारों चीज़ें मिल करके एक कंप्लीट क्लाउड आर्किटेक्चर का निर्माण बनाते हैं। क्लाउड आर्किटेक्चर, किसी भी क्लाउड आर्किटेक्चर को बनाने के लिए इन चार चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। इनका आपस में कनेक्टिविटी नेट के थ्रू होना बहुत जरूरी है। फिर हम लोगों ने देखा कि क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। कुछ काम फ्रंट एंड पे होते हैं जो यूजर को, कस्टमर को, क्लाइंट को दिखते हैं, कुछ काम बैक एंड पे हो रहे होते हैं जिसको कस्टमर या क्लाइंट व्यू नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो डिफरेंट सर्वर्स, डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच हो रहे डेटा के आदान प्रदान को कहते हैं बैक एंड, जो फ्रंट एंड पे विजिबल नहीं। फिर हम लोगों ने बात की थी तीन तरह की क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, क्लाउड की बात की। पब्लिक क्लाउड which is accessible to all the features are available to all the persons, but there is no provision to control over it, no provision to do any modification to the प्राइवेट क्लाउड में। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी कंपनी में अपना क्लाउड सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, उसको यूज करते हैं। इसमें हमारा कंट्रोल होता है उन चीज़ों पे। हाइब्रिड क्लाउड दोनों को कंबाइन करके बनाया गया, ऑर्गेनाइजेशन से एक दूसरे की मदद लेती है अपनी किसी स्टेप को डेवलप करने के लिए। इतनी बातें हम लोगों ने आज की। इसके आगे की बात हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।